Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you to the course of Digital Image Processing, and today's topic is image registration. So before going into that, we will conclude the last lectures, that few lectures we have done on restoration techniques and how to restore image. For that we need to have some estimations, and for estimation of degradation model we have this by observation, by experimentation, and by mathematical models. So we learned this, that we have different kind of methods and formulas, and if we have these degradation model, then we can restore the images. So for restoration, then we have different techniques. One of it is inverse filtering, and then we also learn that we can use minimum mean square error, and that is also called Venner's filters. And then after that we learn that constraint least square filter we can also use, and restoring by using the images of degradation by periodic noise. So if we have a periodic noise in the images, then how we can restore that using different filters. So we learned this is the basic restoration, and we also learned that for restoration we also need to have the knowledge of degradation. So today we will learn what is image registration, and what is the basic definition of it, and how we differentiate it. So there are different measures for it, and these measures are called mismatch and this matching measures. So we will see all this, how it is used, and how to reduce this mismatch and increase the measures that are going to be correct. And then after that we will see that how to use the cross correlation between two images. So if we are using this, then how it can be used for registration. And if we are using it for registration, then we will see that there is some basic problem. So for that reason we will use the normalized cross correlation in between images. And after that we will also see some applications of the image registration. So the first thing is that if we want to understand what is image registration, so it is the basic idea that if we want to have two images combine in a way that they do not have the alignment issue, and that they can become equal in a position relation. So in the basic definition can be the alignment of one image with another. So if we make it align, then what we do, images may be of same or different types. So it can be of same or different type also, like MRI and CT scan. तो हम बेसिकली क्या करते हैं कि इमेज रजिस्ट्रेशन में हम कोई दो इमेजेस लेते हैं, और दो से ज़्यादा इमेजेस भी हो सकती हैं, वो सेम कैमरा से भी हो सकती हैं, और डिफरेंट कैमरा से भी हो सकती हैं, और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के साथ भी हो सकती हैं. तो हम करते क्या है कि हम उनको आपस में अलाइन करते हैं, हम उनको आपस में कंबाइन करने के लिए उनके जो ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम आपस में अलाइन करते हैं. तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि इसका फ़ायदा ये है कि हम अगर ज़्यादा डिटेल देखना चाहते हैं इमेज की, तो अगर हम दो इमेजेस को कंबाइन करते हैं तो हम उससे वो सारे डिटेल देख सकते हैं. फॉर एग्जांपल MRI और CT स्कैन को अगर हम कंबाइन करें तो बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हमें एक ही इमेज में मिल जाएगी, और वो विजिबल होगी, बजाय इसके कि हम उसको अलग अलग देखें, या शायद अलग अलग उसमें हमें वो डिटेल नज़र ना आए. तो पहले हम करते क्या है, हम इमेज रजिस्ट्रेशन करते हैं और दो इमेजेस को आपस में रजिस्टर करते हैं कि कहाँ कौन से एरियाज़ हैं जो कि आपस में मैच हो रहे हैं. तो जब हमारे पास वो मैच होने वाले एरियाज़ आ जाते हैं, तो फिर हम उसके बाद उसका फ्यूजन करते हैं, उनको आपस में मिलाते हैं. सो नो सिंगल इमेज modality provides a complete picture in all cases. Images of different modalities and infer a more comprehensive story than provided by either. तो हम करते क्या है कि अगर हम इन
इनकी फ्यूजन कर लें आपस में, इनको कंबाइन कर लें दो इमेजेस को, तो वो हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देगा, जिस तरह मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तो नॉर्मली हम इनकी फ्यूजन के लिए हम इसकी रजिस्ट्रेशन करते हैं, या अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, हम उसकी मैचिंग करना चाहते हैं कि कौन सा ऐसा एरिया है जिसके साथ एक पर्टिकुलर इमेज मैच हो रहा है, तो उसके लिए भी हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। सो generally the definition can be registration is a process which makes the pixel in two images precisely connected to the same point in the scene. So sorry, ये दोबारा करते हैं यहाँ से। So the basic definition will be the registration is a process which makes the pixel in two images precisely coincided to the same point in the scene. So what we can do, we have two images and we take pixel by pixel matching and we register it so that we can have more information. Once the registration is complete, then the images can be combined or fused in a way that improves the information extraction. तो जब हमारे पास रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद हम उसकी फ्यूजन करेंगे। तो ये सिंपल प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन। फ्यूजन के लिए ज़रूरी है कि हम उसकी रजिस्ट्रेशन करें, और रजिस्ट्रेशन के लिए हम बेसिक फार्मूलाज डिफ़ाइन करेंगे। तो उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत इजी है कि हम दो इमेजेस को आपस में रजिस्टर्ड करें, और फिर वहाँ से हम उसकी मैचिंग देखेंगे कि वो आपस में मैच हो रहे हैं कि नहीं, और अगर वो मैच हो रहे हैं तो इसका मतलब ये कि हम उनको आपस में कंबाइन कर सकते हैं। और जब हम उनको कंबाइन करते हैं तो उसको हम फ्यूजन कहते हैं। फ्यूज़ कर रहे हैं दो इमेजेस को आपस में, और उससे हमारे पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन आ सकती है। सो द रजिस्ट्रेशन हैज़ मैनी एप्लीकेशन। सम ऑफ देम आर लाइक stereo imaging where two images are taken from different positions. हम अगर दो इमेजेस लेते हैं डिफरेंट पोजीशन से, हम जब ये कैमरा की मॉडलिटीज़ देख रहे थे तो उस वक्त हमने ये स्टडी किया था कि अगर हम दो इमेजेस लेते हैं डिफरेंट लोकेशन से तो हम उससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, और वो इंफॉर्मेशन ये होगी कि कितने डिस्टेंस से वो इमेज ली गई है। तो वो डिस्टेंस हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और जब हमें वो डिस्टेंस का पता चल जाएगा तो हमें ऑब्जेक्ट के साइज़ का भी पता चल जाएगा। तो इस वजह से ये ज़रूरी है कि जब हम इमेजेस दो अलग अलग लेते हैं अलग लोकेशन से, तो उनको आपस में हम रजिस्टर्ड करें कि वो कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पर वो आपस में मैच हो रहे हैं। देन अगेन रिमोट सेंसिंग वेयर द इमेजेस में बी टेकन बाय डिफरेंट सेंसर्स। अब हम अगर इमेजेस लेते हैं और वो डिफरेंट सेंसर्स के थ्रू हैं, डिफरेंट लेंसेज के थ्रू हैं, या जो कलर्स की फ्रिक्वेंसीज़ हैं वो हम डिफरेंट ले रहे हैं, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, क्या हम डिफरेंट इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। इस वजह से अगर हम दो इमेजेस को कंबाइन कर लें तो वो डिफरेंट इंफॉर्मेशन एक ही जगह पर विजिबल हो जाएगी, और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कि ज़्यादा इन्हांस हो जाएंगी, वो इंफॉर्मेशन हम इजीली देख सकेंगे। इसके बाद हम और क्या कर सकते हैं, इमेजेस में बी टेकन एट डिफरेंट टाइम्स। अब हम ये भी कर सकते हैं कि अगर हम इमेजेस डिफरेंट टाइमिंग में ले लें, इसकी एग्जांपल ये हो सकती है कि अगर हम एक इमेज लेते हैं जो कि एक डिज़ीज़ के टाइम पर इमेज ली गई है, और फिर हम जब वो डिज़ीज़ को रिमूव करते हैं, कोई ट्यूमर है या कोई ऐसे एरिया है जो कि बॉडी को हार्म कर रहा है, ह्यूमन बॉडी को, तो हम उस सिचुएशन में वो एरिया रिमूव कर लें, और फिर उसके बाद हम दोबारा उसका इमेज लें तो देखें कि क्या डिफरेंस है जो ऑपरेशन के बाद की इमेज है और उससे पहले की इमेज है। सेम हम इस तरह ये भी कर सकते हैं कि अगर कोई डिज़ीज़ है और वो उसकी प्रोग्रेशन हो रही है, वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो हम इमेजेस लेते हैं सेम एरिया के डिफरेंट टाइमिंग के साथ, और उसकी जो प्रोग्रेस है वो देखते हैं कि वो कितनी तेज़ी के साथ प्रोग्रेस कर रहा है। ये डिफरेंट किस्म के उसके एप्लीकेशंस हो सकते हैं, और भी बहुत सारे हैं। तो ये डिफरेंट टाइमिंग्स में जब हम इमेजेस लेते हैं तो उस सिचुएशन में भी हमें उनको आपस में रजिस्टर्ड करना होगा, ताकि हम उसकी डिफरेंस आइडेंटिफाई कर सकें कि क्या डिफरेंस है।
फिर हम और क्या कर सकते हैं, फाइंडिंग अ प्लेस इन अ पिक्चर वेयर इट मैचेस इन अ गिवन पैटर्न। अब हम ये देख सकते हैं कि अगर एक इमेज के अंदर हमने कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है कि कोई ऑब्जेक्ट है वो एक पर्टिकुलर इमेज के अंदर कहाँ पर विजिबल है या कहाँ पर वो अवेलेबल है या वो अवेलेबल है भी कि नहीं। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि हम वो स्मॉलर पोर्शन लेते हैं और वो हम मैच करते हैं पूरे इमेज के अंदर और चेक करते हैं कि क्या वो अवेलेबल है या नहीं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि फिर हम रजिस्ट्रेशन करें। तो अगर हम रजिस्ट्रेशन करेंगे तो तभी हम उसको आइडेंटिफाई कर सकेंगे। तो ये बहुत सारे उसके एप्लीकेशंस हैं। हम आगे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जो हमारे पास एज अ रिजल्ट्स आएंगे कि वो हम कैसे जनरेट कर सकते हैं थ्रू रजिस्ट्रेशन। अब हम आते हैं बिल्कुल सिंपल टेम्पलेट मैचिंग की तरफ। अगर हमारे पास एक टेम्पलेट है जिसको हम मैच करना चाह रहे हैं ओरिजिनल इमेज में, तो वो हम कैसे करेंगे। सिंपल एफ हमारे पास वो वाला इमेज है, फंक्शन है जो है हमारे पास टेम्पलेट है, ठीक है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये टेम्पलेट, और जी जो है ये हमारे पास वो वाला पैटर्न है जिसके साथ हम मैच करना चाह रहे हैं, तो इसको हम पैटर्न कह सकते हैं। नाउ टू एक्सप्लेन इन रजिस्ट्रेशन टेक्निक, लेट्स टेक सम एग्जांपल ऑफ टेम्पलेट मैचिंग। सो फॉर दिस template matching, we take the template of a smaller size. We call this template as a F, which is actually the two-dimensional image. So we can take it as a two-dimensional image. And this is normally a smaller size, and we have an image G which is in a bigger size. So the problem of template matching is to find out where this template of F matches best in a given image G. So for this, F is called template and the G is called as a pattern. So if we have a G as a bigger image and then we have this template, so we find out where is this area where we can match this template. So for that reason, normally the template is small and this G is in a bigger case, and then we match this randomly or by some formula to see where it is going to be matched. जब हमने ये मास्क की सिचुएशन देखी थी कि हम जब मास्क लेते हैं और वो हम कैलकुलेट करते हैं, अप्लाई करते हैं फिल्टरिंग के लिए, तो सेम इसी तरह हम यहाँ पर F जो टेम्पलेट है जो कि एक पोर्शन ऑफ इमेज होगा, वो हम इमेज लेते हैं और हम जो कंप्लीट इमेज में है उसमें हम उसको मैच करते जाते हैं, और वो उसी तरह मूवमेंट उसकी होगी जिस तरह हमारे पास टेम्पलेट मास्क की थी जब हम मास्क फिल्टर यूज़ करते थे। So there are various such matches or mismatches measure, and let us see the different measures that can be used. So G is a given image, and then F is a template. This we already know. So we have the given image G, and G is given normally this is a bigger in size and F is small in size. So we have to find out the measure of similarity between a region of this image G and the template F. So there are various ways in which this similarity can be measured, so that we can find out the match between the F and G over certain regions, say given by A. So this is some certain region where we want to find out F in G. So once one similarity measure, the simplest similarity can be the absolute difference between F and G, and to find out the maximum of absolute difference, then we have to take this as a integral. So in order to similarity measure, we take the absolute difference of F
minus G, and this is the integral of A. So this is one kind, and then there is another one which we can take it as a difference between f and g, and they are as a square. So f minus g. तो अगर हम इसका स्क्वायर लेते हैं ए के साथ इंटीग्रल करके, तो ये अब हमारे पास दूसरा मेथड आ गया है कि अगर हम इस तरीके से इसकी मेजरमेंट ले सकते हैं. और सेम इसी तरह हम सिंपल जो है मैक्सिमम मालूम करते हैं ए के लिए कि वो कौन से एरियाज हैं जो कि हमारे पास ए मैक्स आएगा, और वो होगा बिल्कुल एब्सोल्यूट एफ माइनस जी. तो एफ माइनस जी डिफरेंस निकालते हैं और हम किसी भी एक एरिया के लिए उसका मैक्सिमम वैल्यूज़ आइडेंटिफाई करते हैं. तो ये हमारे पास 3 डिफरेंट मेथड्स हो गए. अब हम करते ये हैं कि अगर हम इसके लिए सिंपली इसको डिफ़ाइन करते हैं डिजिटल डोमेन में, तो वो हम कैसे करेंगे. लेकिन जब हम डिफरेंस की बात करते हैं तो डिफरेंस एक्चुअली क्या है, पिक्सल बाय पिक्सल डिफरेंस जब हम ले रहे होते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये डिफरेंस है f और g के दरमियान. सो वी टेक द डिफरेंस बिटवीन f एंड g, दैट इज अ एब्सोल्यूट वैल्यू, एंड द मैक्सिमम ऑफ दैट इज कंप्यूटेड ओवर in this situation. Okay, now in this case, if we want to have the integral as a f minus g absolute for a region A, and if we want to convert it into a digital form, then how can we do it? We can have it as a summation of absolute value of f I and j minus g I and j, and this is the absolute value. And this summation starts from I and j is a member of A. So this A is the region from where we begin. So only for this A region we calculate the values. So this is f. So here the sum of the absolute difference where the image for the image G and the template f over the region A. And if we want to convert this second expression into a digital form, then we can also convert it like double summation f I g j minus g I j and this square, and again I and j is some member of A. So Fij minus Gij square of this, and if we take the double summation for all ij belonging to the region A, so it is the sum of difference in square. So if we say that Fij minus Gij is the difference between the two images, or is the error, so this is a last expression, that is f minus this one is of our interest for our next values that we will calculate, because this is mostly used and this is the easiest one that we will use it. Now for the three different measures we can get
this last one, and we will continue for some basic formulation. So if we expand the term f minus g square integral is equal to, so what we can do, we can expand it as f square plus integral from a g square minus 2 integral fg. This is again a. Now you find out that for a given image, this double integration f square, this is fixed. So this is fixed, and also this double integration g, this is also fixed. Now what is the f minus g square integral? So if we want to identify the values, because these are fixed, so what we can do, we have only these values to identify. So if this f minus g square is integrated over the region A is a minimum, because this is the mismatch measure, and at the particular location of f matches the best over the region of G. That means that f minus g square integral, this will be minimum when f into g double integral, this term will be maximum. So whenever the mismatch is minimum, that will lead to f into g double integral over the region A. This will be maximum. So when f minus g square double integral is taken as a measure of mismatch, तो यहाँ पर हमारे पास जो ये वैल्यूज़ आएंगी, तो ये हम एज अ मिसमैच वैल्यूज़ यूज़ करते हैं, क्योंकि जब हमारे पास ये ज़्यादा होंगी तो हमारे पास मिसमैच आएगा, और अगर ये कम होंगी तो हमारे पास जो मेजरमेंट है वो मैच हो रही होंगी. तो इस वजह से हम इसको ले सकते हैं एज अ डबल इंटीग्रल of a dot g. This is match measure, or we can also call it as a similarity measure. So we can take the double integral f into g over region given from A. This is can be measure match measure or a similarity measure. So this means that whenever the given template matches the best at portion of the given image G, in that case f into double integral over the region A will have a maximum value, and we take this as the similarity measure or the match measure. तो अब जब भी हमारे पास ये ज़्यादा होगा तो हम करेंगे ये कि वो हमारे पास मेजर हम उसको काउंट करेंगे कि ये मैच मेजर है, और अगर ये कम होगा तो वो हमारे पास मैच नहीं हो रहा होगा, उसकी वैल्यू हमारे पास कम आएगी. अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एक मेथड है जिसको हम स्वार्ट्ज इनइक्वालिटी कहते हैं, और उसमें हम करते ये हैं कि हम सिंपली जो मिस मेजर है
मेजर है या जो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे थे सिमिलैरिटी मेजर, तो हम इसको प्रॉपरली अलाइन करते हैं और हम इसकी वैल्यूज़ को डिफाइन करते हैं. सो दैट द डबल इंटीग्रेशन ऑफ दिस f dot g, this is less than or equal to double integral f square double integral g square under the root. So these two terms will be equal only when g is equal to cf, and this c is actually a constant value for times of f. So the left hand side and the right hand side will be equal whenever g is equal to c times f. Otherwise left hand side will always be less than the right hand side. So this is also we can say that whenever f or the template is similar to the region of a given image g within that multiplicative factor of constant c, then this f into g integration will take on the maximum value, otherwise it will be less. So what we can do now, we convert this into a digital case. Then the same expression is written in the form of double summation f I j into g I j is less than or equal to I and j are members from A, and this is less than and equal to double summation f square I j dot double summation g square I j. And again I and j belongs to A, I and j belongs to A, and this is under the root. So the left hand side and the right hand side will be equal only when g I j is equal to cf I j. So this has to be true for all values of I, j when for the given region. So now the inequality becomes right like this, that double integral f of x y dot g of x plus u y plus v dx dy is less than and equal to double integral f square x y dx dy, and then double integral g square x plus u y plus v dx dy, and all of them are for a certain region A.
So now the reason we are introducing these two variables u and v, this is that whenever we try to match the given factor f against the given image g, we have to find out what is the match measure or the similarity measure at a different location of g. So for this, f has to be shifted all to all the possible locations in the given image g, and that shift, the amount of shift that has to be given to the pattern f to find out the similarity measure at the particular location, we introduce these two shift components u and v. So this is to be says that it's shifting along x direction u, for x direction u, and for y direction v. So here in the expression, the similarity between the given template f and the image g with shift u and v is computed, and this is computed over a given region A. Now because this f x y is small and the value of fx into gx plus u plus v into dx dy, they become equal to 0 outside the region. So what we can do, we can have the formula now to make it for all the possible values. So for that, we took the particular expression fxy into gx plus y for the infinity values. So we can take it as a integral of f of x y into g x plus u y plus v dx dy from minus infinity to infinity. So now this is our left hand side. Now if you look at this particular expression, this one, then we identified that this infinity to infinity, this is nothing but the cross correlation between f and g, and then if we look at the right hand side, this f square xy dx dy integral over a, this is constant for a given template, whereas the particular component that is g square x plus u y plus v dx dy, this is not a constant because the value depends upon the shift u and v. So through the left hand side, we have got the cross correlation between the function f and g, but this cross correlation directly cannot be used as a similarity measure because the right hand side is not fixed. Though f square x y dx dy is fixed, but g square x y x plus u y plus v dx by integral is not fixed. It depends upon the shift u and v. So because of this, the cross correlation measure cannot be directly used as a similarity measure or match measures. So what we have to go for, we have to need to make it as a normalized cross correlation. So if we call this as a f of x and y, and then g of x plus u y plus v dx dy
integral infinity to infinity. This is equal to be CFG. We represent this as a cross correlation CFG. Okay. Then the normalized cross correlation will be given as a CFG divided by square divided by G square x plus U y plus V dx dy, an integral of a, and this is all under the root. So now this is our normalized cross correlation. So the normalized cross correlation will be CFG and divided by this particular expression. Now by double integral f square, what we can do, double integral f square x y dx dy square, the region, this is integral or region A, and because this is fixed, so this region of the integration is not very important. Square root of this, this is a maximum value which will be attained by the normalized cross correlation for a particular value of u and v. For this value of u and v, for which this function becomes some constant c times f, so we say g is equal to cf. So for this particular value, the shift uv where g is equal to the sum constant c times f, this normalized cross correlation will take the maximum value, and the maximum value of this normalized cross correlation is given by the double integral f square x y dx dy, and square root of this is now we can see here that this is the basic formula. So to see some example of it, we move to the next slide. So here is one example that we have a template which is a f, and this is as a mask, as an image of 2 dimension, and then we have the original image where we need to make the matching, that is as a G. So if we want to put compare this from the beginning, then what we have to do, we have to put as a mask as we were using it in the filtering. तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो इसका सेंटर है वो हम अलाइन करते हैं किसी एक वैल्यू के साथ. तो फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं, अगर हम इस वैल्यू को अलाइन करते हैं सिंपली इस 1 के साथ, तो हमारे पास जो टेम्पलेट है वो एग्जैक्टली उसकी वैल्यूज़ किस तरह आएंगी. 3 3 2, फिर उसके बाद आ जाएंगे 3 3 2 2 2 और यहाँ भी 2 आ जाएगा. अब ये हमारे पास टेम्पलेट आ गया जो हम अप्लाई करते हैं. तो हम सेंटर को हमने यहाँ पर रखा, तो ये हमारे पास वो सेंटर वाली वैल्यू आ गई. तो अगर हम इसका सिंपल क्रॉस कोरिलेशन आइडेंटिफाई करते हैं, तो वो जो फॉर्मूला है हमारे पास CF G, उसके लिए हमें वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी होंगी. तो वो सिंपली क्या होगा, इस पर्टिकुलर एरिया के लिए हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो सिंपली होगी 47, क्योंकि जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इंटू
20 हमारे पास 40 आ जाएगा, और सेम इसी तरह 2, 3 और 2 को हम इन सब को अगर हम ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास सिंपली इसकी वैल्यू आ जाएगी 47। और ये बाकी जो ये वाले वैल्यूज़ हैं ये हम कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे पास 0 आ रहे हैं। तो सेम इसी तरह हम अगर इसको मूव कराते हैं नेक्स्ट, और इसको हम मूव करते हुए हम इस लोकेशन पर पहुंचते हैं कि जो हमारा टेम्पलेट है वो इधर आ जाए, तो इस सिचुएशन में अगर हम इसको अलाइन करते हैं एग्जैक्टली इधर, तो इस सिचुएशन में हमारे पास जो CFG की वैल्यू है वो आ जाएगी 56। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं और सिंपल फार्मूला देखते हैं तो हमारे पास 56 वैल्यू आ जाएगी। तो अब सेम इसी तरह अगर हम सारे वैल्यूज़ आइडेंटिफाई करते हैं क्रॉस कोरिलेशन फॉर एज अ सिमिलैरिटी मेजर, तो जो भी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हैं वो हम उसको एज अ मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारे आ जाएंगे 47, 54, 56, 20 और सेम इसी तरह कंटिन्यू करते हुए हम जितने भी वैल्यूज़ हैं उन सबको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर वैल्यू दें कि जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारे पास आ रही है 107। क्रॉस कोरिलेशन के जो मेजर है, जो मैच होने वाले मेजर्स हैं वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि ये जो टेम्पलेट है ये यहाँ पर मैच हो रहा है। लेकिन अगर हम इसको देखें तो विजुअली हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं वो एग्जैक्टली यहाँ पर मैच होना चाहिए था, लेकिन जो हमारे पास क्रॉस कोरिलेशन से रिज़ल्ट आ रहा है वो कुछ ये वाला आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि यहाँ पर 107 यहाँ पर आ रहा है हमारे पास, तो ये जो क्रॉस कोरिलेशन के थ्रू हमारे पास मेजर आ रहा है वो हमें ये बता रहा है कि ये मैच हो रहा है इधर। लेकिन हम अगर देखते हैं ओरिजिनली तो वो इधर होना चाहिए था, जो कि हमें गलत रिजल्ट्स दे रहे हैं। तो क्रॉस कोरिलेशन measure directly cannot be used as a similarity measure as false match. So that's why it's not good to use the cross correlation measure directly for the similarity measure, क्योंकि वो हमें जो मैचिंग करा रहे हैं, जो वैल्यूज़ हमें दे रहे हैं वो एग्जैक्टली करेक्ट नहीं है। तो इसलिए हम करते क्या है कि हम इसके नॉर्मलाइज क्रॉस कोरिलेशन वैल्यू यूज़ करते हैं, और उसके लिए हमने जो वैल्यू आइडेंटिफाई करने हैं वो सिंपली हम इस फॉर्मूले के थ्रू करेंगे। तो ये अब हमारे पास एग्जैक्टली फिर वही वैल्यूज़ हैं, और इसके लिए हम नॉर्मलाइज क्रॉस कोरिलेशन की वैल्यूज़ आइडेंटिफाई करेंगे। तो जब हम वो आइडेंटिफाई करते हैं तो वो सिंपली ये वाली वैल्यूज़ आ जाती हैं, और आउटपुट के तौर पर हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाती हैं। फिर हम करते क्या है कि अब हमने इसको भी नॉर्मलाइज करना है। सो दिस इज़ द क्रॉस नॉर्मलाइज कोफिशिएंट हैव बीन कंप्यूटेड फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ u and v, and then we have to normalize the cross correlation with the normalization factor. So this is how do we get this 20.07. So it's just simply adding the values, because if we put the template here and this is the middle of the template, then what we do, we have a 20 into square plus 1 square plus 1 square plus 1 square, and this is the square root. So if we compute this, then it will become like a 20.07. तो अब क्योंकि हमारे पास सारे वैल्यूज़ नहीं आ रहे, यहाँ पर वो ज़ीरो वैल्यूज़ आ रहे हैं, सो जैसे हम सिर्फ इन वैल्यूज़ को लेते हैं। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे कि हमने इसको नॉर्मलाइज करना है एक फैक्टर के साथ, ताकि हम उस वैल्यूज़ आइडेंटिफाई कर सकें।
सिंपली। तो इसके साथ अब हमने क्या किया कि CFG के साथ हमने इसको नॉर्मलाइज किया जब हमें CFG की वैल्यू आ गई। So on the top of the original cross correlation coefficient, this is the original cross coefficient relation matrix R, and by using this normalization, what we have now, this is the normalized form. So now here we identify that this is the only possible biggest value in the complete matrix. यहाँ पर अगर हम देखें तो जब हम नॉर्मलाइज क्रॉस कोरिलेशन की वैल्यू देखते हैं 7.48, तो ये हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है, और यहाँ अगर हम सिंपल क्रॉस कोरिलेशन में देखते हैं तो 107 आ रहा है हमारे पास। तो इस वजह से अगर हम इसको कंपेयर करते हैं टेम्पलेट के साथ, ओरिजिनल इमेज लेते हैं और टेम्पलेट लेते हैं, तो वो हमें उसी जगह पर एग्जैक्टली पॉइंट आउट करता है, क्योंकि ये जो 7-8 है ये इस जगह पर आ रहा है मिडल में, और अब ये जो टेम्पलेट था अगर हम इसको यहाँ पर रखते हैं तो यही वैल्यूज़ सबसे ज़्यादा विजिबल हैं, जो ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, और यही हमें रिक्वायर्ड थी और एग्जैक्टली मैच करने के लिए पॉसिबिलिटी हमारे पास यही थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सिर्फ वो वाले जब क्रॉस कोरिलेशन वैल्यूज़ लेते हैं डायरेक्टली तो वो हमें सही रिजल्ट्स नहीं देंगे, लेकिन जब हम नॉर्मलाइज क्रॉस कोरिलेशन मैट्रिक्स लेते हैं तो सिचुएशन में हमारे पास रिजल्ट्स बेहतर आते हैं। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू लुक फॉर सम एप्लीकेशंस। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अगर ये टेम्पलेट है हमारे पास और ये इमेज है, तो ये इस इमेज से पीस लेकर हम देखना चाह रहे हैं कि क्या इसके अंदर मैच हो रहा है कि नहीं, तो वो कौन सा एरिया है जहाँ पर वो मैच होगा। तो इस वजह से हम सिंपली इस पर सिंपल क्रॉस कोरिलेशन अप्लाई करेंगे, नॉर्मलाइज क्रॉस कोरिलेशन अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए हम इस सिंपली स्टार्ट करते हैं लोकेशन नंबर 1 से। तो हम यहाँ पर जब इम्प्लीमेंट करते हैं और हर एक पॉइंट का पॉइंट टू पॉइंट पिक्सल बाय पिक्सल हम उसके वैल्यूज़ आइडेंटिफाई करें और उसके सिमिलैरिटी मेजर निकालें, तो वो हमारे पास 431.05 आएगा। और अगर हम नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड लोकेशन पे, तो सेकंड लोकेशन के लिए हमारे पास जो सिमिलैरिटी मेजर है वो 462.17 आएगा। सेम इसी तरह हम आगे कंटिन्यू करते हैं, और जब हम थर्ड लोकेशन पर जाते हैं तो हमारे पास सिमिलैरिटी मेजर जो है वो आएगा 4.36.94। इसी तरह हम लोकेशन नंबर 4 पर जाते हैं जो कि बिल्कुल मिड में है, और उसके सिमिलैरिटी मेजर आइडेंटिफाई करते हैं, तो वो आएगा 635.69। सेम इसी तरह हम लोकेशन नंबर 5 पर जाते हैं, तो वहाँ के सिमिलैरिटी मेजर जो हैं वो आएंगे 417.1। और इसी तरह लोकेशन नंबर जो 6 है उसके सिमिलैरिटी मेजर लेंगे अगर हम, तो वो होगा 511.18। तो यहाँ से हमें पता चलता है हम ये टेम्पलेट क्योंकि मूव करा रहे होते हैं एवरी लोकेशन पर, तो हर एक लोकेशन के सिमिलैरिटी मेजर डिफरेंट आएंगे। लेकिन जब हम इस लोकेशन पर पहुँचेंगे तो इसके जो वैल्यूज़ हैं वो सबसे ज़्यादा आएंगे। अगर हम इधर दरमियान में और भी ले लें तो उनके वैल्यूज़ भी इससे कम होंगे, क्योंकि ये एक पॉसिबल एरिया है जहाँ पर सिमिलैरिटी मेजर्स सबसे ज़्यादा हैं, और यही हमें विजुअली भी नज़र आ रहा है कि ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर ये मैच हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सिमिलैरिटी मेजर लेते हैं, नॉर्मलाइज सिमिलैरिटी मेजर, तो वो हम इमेज में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उस एरिया को कि कहाँ पर वो बिलोंग करता है, कहाँ से वो मैच करता है। अब
हम इमेज रजिस्ट्रेशन जो है इसको यूज़ करते हैं फॉर रिस्टोरेशन पर्पस। हम ये कर सकते हैं, और इसके लिए हमें सिंपल क्या करना होगा कि अगर हमारे पास ओरिजिनल इमेज है, जिस इमेज को हम लेना चाहते हैं, लेकिन जब हम इमेज लेते हैं तो वो कुछ डिस्टॉर्शन उसमें आई है, और वो डिस्टॉर्शन की बेसिस पे ओरिजिनल से वो डिफरेंट है। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना होगा, हम अगर इनको रजिस्टर्ड कर लें पॉइंट टू पॉइंट, जिस पॉइंट के साथ जो रिलेट कर रहा है, तो अगर हम वो रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो इसके बाद हम उस इमेज को रिस्टोर कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें सिंपली एक छोटा सा फॉर्मूला लेना है। सो फॉर दिस काइंड ऑफ रिस्टोरेशन दैट वी कैन अप्लाई हियर सम simple formulation that we need to have, and if we have the original point, say f x and y, this is the original, and then the point after distortion is mapped to the location x prime and y prime, then we can go for estimation of the polynomial degradation model in the scene that we estimate that x prime is a polynomial function of x and y. So x prime is equal to k1x plus k2y plus k3x and y plus k4. Now and y prime is equal to k5x plus k6 y plus k7 xy plus k8. So from this, if we can estimate this constant coefficient k1 to k8, then for any given point in the original image we can estimate what will be the corresponding point in the degradation image. So for the estimation for computing this k1 to k8, this constant coefficient are 8 unknown values. So for that unknown 8 values we need to have 8 equations or maybe 4 equations of pairs, because these are 8 values. So for 8 values we need to identify the 4 pairs of points, and this is because if we find out the value corresponding to this point, this will be like a k1, and then for k2, because these are in different locations. So if we look to this figure, we have 4 such corresponding pairs. Once we have 4 such corresponding pairs, then we can generate 8 equations, and using these 8 equations we can solve all the constant coefficient k1 to k8. And once we get these coefficients, then we can restore the image, and we have the undistorted image for all the points. So if we apply this distortion and find out what point the distortion image occurs, then the values, the intensity values at that location in the distortion image, we can simply apply the formula for restoration. So obviously when we are doing this, there will be some points where there will be no information available, so we call it as a P and Q. So these P and Q values, they will be unknown, so we can have some estimation measure that we estimate that what will be the possible values that we already studied. So this is the basic formula, and after that we will have to see some of the applications, that how we can use this
registration in our journal or normal life for applying it on different images. So here we have the MR images, which is the magnetic resonance images, and normally in the MR images we look for the water substance where the water is consumed mostly, and then we have the CT measure X-ray images, and then we see that in the CT normally we see the X-ray absorption where we can have the visibility of bones. So if we see these both are from a different imaging technology and they show different information. यहाँ पर हम MRI इमेज और CT इमेज देखते हैं तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, क्योंकि CT जो है वो हमें जो एक्सरे एब्जॉर्प्शन है वो हमें बताता है, और MRI इमेजेस में हम जो वाटर के एब्जॉर्प्शन है वो हमें बताता है. तो हम इन दोनों को अगर हमने कंबाइन करना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम पहले इसकी रजिस्ट्रेशन करें. तो जब हम रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसके बाद हम इसके फ्यूजन कर सकते हैं, जो हमने लेक्चर के स्टार्ट में देखा था कि फ्यूजन के लिए ज़रूरी है कि हम दोनों को अलाइन करें, उनको आपस में रजिस्टर्ड करें. तो पहले हम करते क्या हैं कि हम अलाइनमेंट करते हैं. तो अलाइनमेंट के लिए हमें रजिस्ट्रेशन करनी है, तो वो हम पॉइंट टू पॉइंट रजिस्ट्रेशन जब करते हैं तो टेम्पलेट के थ्रू, तो वो हमें आइडेंटिफाई होता है कि ये एक ऐसी लोकेशन है जिसमें दोनों जो इमेजेस हैं वो आपस में मैच कर रही हैं. इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम उसका फ्यूजन करते हैं, उनको आपस में मिलाते हैं. तो जब हम मिलाते हैं तो ये जो ग्रीन एरियाज़ हैं वह वो ऐसे एरियाज़ हैं जो हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि कहाँ पर हमारे पास बोन का एरिया है, और जो एरियाज़ नॉर्मली विजिबल नहीं है सिंपल, इन दोनों का जब हम कंबाइन करते हैं तो ये वाला एरिया बिल्कुल डार्क है, इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये सिर्फ बोन्स की इन्फॉर्मेशन है. लेकिन जब हम इनको कंबाइन करते हैं तो साथ में बोन की इन्फॉर्मेशन भी आ रही है, लेकिन इसमें जो MRI की इन्फॉर्मेशन है वो भी हमने ऐड अप कर दी है. तो ये हमारे पास एक एप्लीकेशन हो गई, और इसके बाद हम दूसरी एप्लीकेशन देखते हैं मोज़ाइकिंग की, कि नॉर्मली हम इमेजेस लेते हैं और मल्टीपल इमेजेस एक ही सीन के लेते हैं कंटिन्यूसली, और हम चाहते हैं कि उनको आपस में कंबाइन करके एक बिगर साइज इमेज बना ले, ताकि एक ही इमेज के अंदर पूरा जो एरिया है वो विजिबल हो जाए. तो अगर आप देखते हैं यहाँ एक इमेज है और ये दूसरी इमेज है जो कि थोड़ा सा उसका एंगल डिफरेंट है, और हम यहाँ पर इसको कंबाइन करते हैं. तो वो कंबाइन करने के लिए ज़रूरी है कि हम पहले उसकी रजिस्ट्रेशन करें. तो जब हम रजिस्ट्रेशन करेंगे तो इन दोनों इमेजेस में ऐसे एरियाज़ हैं जो कि आपस में मैच हो रहे हैं. तो जब वो मैचिंग एरिया हमें मिल जाएंगे तो उसके बाद हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे और उनको कंबाइन करेंगे. सेम इसी तरह हमारे पास मल्टीपल इमेजेस हैं जो कि एक रूम के एरिया के लिए गए हैं, और उन सारे इमेजेस को हम किस तरह कंबाइन करेंगे, क्योंकि कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो कि इनमें आपस में मैच हो रहे हैं. तो हम इन मैचिंग एरियाज़ को आपस में रजिस्टर्ड करते हैं, और इसके बाद जो बाकी एरियाज़ रह जाएंगे तो हम उनको पैच कर लेते हैं. तो ये सिंपल मोज़ाइकिंग के एग्जांपल्स हैं, और भी इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स यूज़ हो सकते हैं जर्नल लाइफ में. तो यहाँ पर हम समराइज़ करते हैं आज के लेक्चर को. हमने ये देखा कि इमेज रजिस्ट्रेशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम उससे बहुत सारे यूज़फुल काम ले सकते हैं. हम मल्टीपल इमेजेस को कंबाइन कर सकते हैं, हम डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं उसके थ्रू, और भी बहुत सारे यूज़फुल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं हम. तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास मिसमैच या जो सिमिलैरिटी मेजर है उसका फार्मूला हो. अगर वो हमारे पास होगा तो हम उससे सिंपली उसके मेजरमेंट कर सकते हैं कि क्या वो मैच हो रहे हैं कि नहीं. तो वो हमने वो 3 बेसिक फार्मूले देखे थे. फिर उसके बाद हमने देखा कि अगर हम क्रॉस कोरिलेशन लेते हैं 2 इमेजेस का, तो वो हमें वो बेसिक इन्फॉर्मेशन देगा कि कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ से हम उसकी टेम्पलेट की मैचिंग कर सकते हैं. तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम नॉर्मलाइज क्रॉस कोरिलेशन लें, क्योंकि
जब हम सिंपल क्रॉस कोरिलेशन लेते हैं, डायरेक्टली यूज़ करते हैं, तो वो हमें मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन देगा। और उसके बाद हमने कुछ एप्लीकेशंस देखी, और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, लेकिन चंद एक से हमें समझ आ जाती है कि रजिस्ट्रेशन कितने इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आज के लेक्चर को हम ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम और टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।